Hey guys, this is Pooja's Biotechnology and today's topic is vaccine production. Our today's topic is for BTech Biotechnology third year student of Ekiti University, and the topic that is vaccine production comes from the subject Animal Biotechnology and the subject code is RBT021, and this topic is from unit 3rd, Animal Biotechnology unit 3rd. So before discuss about vaccine production, let's have a brief introduction about vaccine. So what is vaccine? Vaccine contains an antigen that resembles a disease-causing microorganism and is made from weakened or killed form of the pathogen or toxin that activates the body's immune system and improves the immunity against a particular disease for which vaccines was administered. वैक्सीन जो होता है वो बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है. वैक्सीन को बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है जिसमें जिस डिजीज़ के अगेंस्ट हम उसको बना रहे हैं वो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है. या तो वो किल्ड फॉर्म में होगा या तो वीकेंड फॉर्म में होगा वो पैथोजन. उसको जब हम अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो एक्टिवेट कर देता है बॉडी के इम्यून सिस्टम को और इम्प्रूव करता है हमारी इम्यूनिटी को अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज़. जिस डिजीज़ के लिए वो वैक्सीन बनी हुई है, जिस डिजीज़ के अगेंस्ट हम उस वैक्सीन को यूज़ कर रहे हैं. So this is the concept of vaccine. Vaccination is one of the most effective ways to prevent a disease. Immune system, a vaccine helps the body's immune system to recognize and fight pathogen like viruses or bacteria, which then keep us safe from disease they cause. The principle behind vaccine is that the aim of vaccine is to provoke our immune system to develop an immune response against an antigen and to generate memory cell so that when the individual is again exposed to the same antigen, a much more stronger secondary immune response will result. जब हम I hope you all know about secondary immune response and primary immune response. तो वैक्सीन का बेनिफिट ये होता है, यही प्रिंसिपल होता है वैक्सीन के बिहाइंड कि जो वैक्सीन होता है वो हमारे सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाता है. जब वो एंटीजन सेकेंड टाइम आता है हमारी बॉडी को तो फिर क्या होता है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पांस जनरेट होता है उस एंटीजन के अगेंस्ट बिकॉज ऑफ मेमोरी सेल्स. वैक्सीन अगेंस्ट एंटीजन मोर देन 25 deleting are life-threatening diseases including polio, tetanus, diphtheria, influenza, typhoid, meningitis, etc. बहुत सारी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं एंड बहुत सारी वैक्सीन्स पे काम भी चल रहा है. वैक्सीन जो है वो बेस्ट वे है किसी भी डिजीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी डिजीज़ से प्रोटेक्शन के लिए इफ़ेक्टिव वे है डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए. ओके. So this was the brief introduction about vaccine. So let's move on our main topic, that is steps in vaccine production. This diagram shows the steps in vaccine production. There are mainly two steps, that is upstream processing and downstream processing. Are all whole bioprocess engineering has only two processes, mainly upstream processing and downstream processing. In upstream processing we discuss about the initial step, the substrate that we use, and in downstream processing we discuss about the recovery of the product and the purification of the product. Upstream processing is again divided into two steps, that is selection of strains and growing of microorganism. These are the two steps that includes upstream processing in steps in vaccine production में. And the another, that is second step in vaccine production, is downstream processing, and this downstream processing is further divided into 4 steps. First is harvesting and purification of microorganism, inactivating and splitting of organism, and the third one is that
formulation of vaccine, and the last one is quality control and lot release. So this is the diagram which shows the steps involved in vaccine production. We'll discuss about upstream processing. This is the first step of upstream processing, that is selection of strains for vaccine production. Okay. Manufacturing begins with a small amount of specific virus or bacteria. जब हम वैक्सीन प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन से स्टार्ट किया जा सकता है, स्पेसिफिक वायरस या बैक्टीरिया से. इसी को हम इनोकुलम भी कहते हैं या स्टार्टर भी कह सकते हैं. द वायरस और बैक्टीरिया मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी इम्प्योरिटीज इंक्लूडिंग अदर सिमिलर वायरसेस और बैक्टीरिया एंड इवन वेरिएशन ऑफ सेम टाइप ऑफ वायरस और बैक्टीरिया. जो भी एंटीजन हमने लिया है, जो भी वायरस या बैक्टीरिया हमने लिया हुआ है इम्यूनिटी इंड्यूस करने के लिए, वो फ्री होना चाहिए किसी भी इम्प्योरिटीज, उसमें कोई अदर इम्प्योरिटीज़ नहीं होना चाहिए, वो इंक्लूड करना चाहिए इंक्लूडिंग अदर सिमिलर वायरसेस. उसके सिमिलर भी कोई वायरस नहीं होना चाहिए, कोई बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, एंड इवन वेरिएशन, उस एंटीजन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होना चाहिए, उसके सिमिलर भी नहीं होना चाहिए. ऑल दीज पॉइंट्स आर कंसिडर्ड ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेन. The virus or bacteria must be kept in ideal condition, usually frozen, that prevent virus from becoming either stronger or weaker than desired. जो भी वायरस या बैक्टीरिया हम चूज़ कर रहे हैं उसको हम केप्ट रखते हैं आइडियल कंडीशन में, यूजुअली फ्रोजन कंडीशन में. फ्रोजन कंडीशन जो है वायरसेस के लिए मेनली एक आइडियल कंडीशन है, क्योंकि इस कंडीशन में ना तो हमारा जो वायरस है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो पाता है और ना ज़्यादा वीकर होता है, वो डिज़ायर्ड कंडीशन को मेंटेन करता है. चॉइस ऑफ स्ट्रेन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग द एफिकेसी ऑफ रिजल्टिंग वैक्सीन एंड इट्स सेकेंडरी इफेक्ट्स. जो स्ट्रेन हमने सेलेक्ट किया है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि एफिकेसी क्या है उस रिजल्टिंग वैक्सीन की और उसके सेकेंडरी इफेक्ट्स क्या है हमारी बॉडी में. बैक्टीरियल और वायरल स्ट्रेन शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड कल्चर. एम्फेसिस ऑन दिस पॉइंट, रिकॉग्नाइज्ड कल्चर से ही हमें बैक्टीरिया वायरस का सैंपल लेना है. एंड ऑल्सो इट इज़ नेसेसरी टू कंपाइल अ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेन इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ इट्स आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन. हमारे पास उस सैंपल की टोटल हिस्ट्री होनी चाहिए, कहाँ से आइसोलेट हुआ है, उसका आइडेंटिफिकेशन भी हमें पता होना चाहिए. सो दिस वॉज द स्टेप ऑफ अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग. And that was the first step in upstream processing. Let's have a look on the second step, that is growing of microorganism. In growing of microorganism, bulk production begins with the cultivation of virus or bacteria in a fermenter equipped with numerous processes parameter to control pH, temperature, dissolve oxygen and other factor. While growing the microorganism we consider all these points. ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, दो तरह के जो हमारे बैक्टीरिया वायरसेस उनके ग्रोइंग के लिए बैक्टीरिया अगर है तो या तो बैच कल्चर या तो कॉन्टिन्यूस कल्चर में ग्रो करते हैं. बैच कल्चर क्या होता है? बैच कल्चर वो कल्चर होता है जो क्लोज्ड वेसल में कराया जाता है, जिसमें हम अपना सबस्ट्रेट एक ही बार ऐड कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग द रनिंग प्रोसेस ऑफ बायो रिएक्टर. एंड जो हमारा प्रोडक्ट है वो उसके रनिंग टाइम के एंड अप होने के बाद ही हम अपने प्रोडक्ट की रिकवरी कर सकते हैं. कंटिन्यूस कल्चर में हम मैनी टाइम सबस्ट्रेट ऐड भी कर सकते हैं और मैनी टाइम अपने प्रोडक्ट को अपटेक भी कर सकते हैं. ग्रोइंग वायरसेस में सेल, टिश्यू या कल्चर में, एम्ब्रियोनेटेड एग में. वैक्सीन प्रोडक्शन में दिस इज ऑल अबाउट वैक्सीन प्रोडक्शन. थैंक यू गाइज.